To further enlighten our audience on direct taxation, we now proceed to the engaging panel discussion. And for this session, it's my honor to invite on stage our esteemed panelists. Our first panelist for this session is Mr. Mohammad Raza, a fellow member of ICAP and partner in tax service at AF Ferguson and Company. He brings over 2 decades of experience in direct tax advisory, compliance, planning, and has worked with many of the country's largest corporate clients. Mr. Raza is known for his deep knowledge for tax legislations and policies. Please welcome in a huge round of applause Mr. Mohammad Raza. Our next panelist is Mr. Khalid Mahmood, a fellow member of ICAP and partner in tax at KPMG, Tasir Hadi and Company, with more than 24 years of experience in tax practice. He has served as president of the Karachi Tax Bar Association for the term 2018-19 and as senior vice president of the Pakistan Tax Bar Association for the term 2021-23. He is widely recognized for his expertise in and has led numerous complex tax and merger and acquisition transactions. Please warmly welcome Mr. Khalid Mahmood. Our last panelist for this discussion is Mr. Anwar Kashif Mumtaz, senior partner at Sayyideen and Company, a tax and corporate law firm. He is an advocate of the Supreme Court and has held many leadership roles in tax community. He is currently served as the president of Pakistan Tax Bar Association. Please welcome Mr. Anwar Kashif Mumtaz. This session will be moderated by Mr. Mohammad Muzammil Hemani, a seasoned tax practitioner, researcher, and author with extensive expertise in local and international taxation. He served as partner tax and legal at Hemani, Varsiwala, and executive director at AccuVerse Consulting. He is also fellow member of ICAP and a law graduate. Please welcome Mr. Mohammad Muzammil Hemani. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good afternoon. On behalf of ICAP, it's my honor to welcome you all to this vital post-budget conference focused on what matters deeply to every taxpayer as CFO, professional, entrepreneur in case of direct taxation. Budget 2025 has come at a time when Pakistan is at fiscal crossroads, battling inflation, eyeing an IMF program, and walking the tightrope between the equity and enforcement. So before I formally commence the panel discussion on the direct taxation, मैं सबसे पहले चाहूँगा कि एक छोटा सा सवाल जो है वो अपने एस्टीम्ड पैनलिस्ट से करूँ कि सर व्हाट डू यू थिंक कि ये जो बजट है अनवर साहब ये आईएमएफ फ्रेंडली है या इसमें कुछ आम आवाम के लिए भी कुछ अवेलेबल है और फिर साइमल्टेनियसली डोंट यू थिंक कि ये वही जो है वो हमें प्रेजेंट कर दिया गया एक नई पैकिंग के साथ, ठीक है, हर साल जिस तरह से हम रेवेन्यू टारगेट्स की बात करते हैं, जिस तरह से हम दूसरे मेजर्स की बात करते हैं, तो फंडामेंटल रिफॉर्म्स के बगैर जो है वो ये बजट जो है वो प्रेजेंट कर दिया गया है सर। थैंक यू सो मच। बेसिकली अगर आप ये देखें कि जो बजट है वो आईएमएफ की मीटिंग के बाद अनाउंस हुआ है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो है उसके बाद डिसाइड हुआ कि क्या करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में और ये होना भी पड़ेगा इसलिए कि आप आईएमएफ से आपको जब आप उनके साथ जाके नेगोशिएट कर रहे हैं ट्रांच और उनके साथ आपने पैसे लेने लोन की, तो मेरे ख्याल में ये जो चीज़ें इसी तरह होगी कि उन्होंने जो डायरेक्शंस दी होंगी उन पर अब इसमें दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो डिजिटलाइजेशन की तरफ जो गवर्नमेंट जा रही है, जिस पर हैदर साहब ने भी बात की, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो ये आईएमएफ का इनिशिएटिव है। पॉलिसी मेकर्स हमारे इस तरह की पॉलिसी बनाने ना उनके विजडम है ना उनका विजन है ये, तो मेरे ख्याल में ये आईएमएफ का वो है। अब इसमें अवाम को तो आईएमएफ को कंसर्न नहीं है, तो जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर में बैठे हैं उनको देखना चाहिए कि अवाम के लिए क्या होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में अवाम से रिलेटेड इसमें कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ इस बात से है कि आईएमएफ को जो उनका डेट है वो किस तरह इस फिस्कल ईयर में वापस मिल सकता है और उसमें कोई शॉर्टफॉल ना हो। सर खालिद साहब, आप क्विक कमेंट। इस बजट के बारे में एक तो सबका ये तो पावर हो ही गया है कि इसमें पॉजिटिविटी कम नज़र आ रही है। कहा यह गया था कि कुछ सर्टन सेक्टर्स जो हैं उनको कुछ रिलीफ दिया जाएगा, वेयर एज ऑन द अदर हैंड ये भी बताया गया था कि डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको हम इम्प्रूव करेंगे। दोस्त इसके अंदर सिर्फ इम्प्रूवमेंट जो आई हैं वो एक सैलरी की टैक्सेशन के ऊपर बट वेरी मिनिमल, और दूसरे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर कुछ सर्टन एडिशन तो ज़रूर की गई हैं, लेकिन
उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें टैग कर दी गई हैं जिसके साथ प्रॉब्लम हुई है। आप अभी बात कर रहे थे कि क्या ये आईएमएफ का बजट है, ये अवाम फ्रेंडली बजट है, तो मैं कहूँगा कि आईएमएफ की तरफ से उसकी कलेक्शन के क्वांटम के ऊपर बात ज़रूर हुई है। उन्होंने आपको ये नहीं डायरेक्ट किया कि आपने उसको डिज़ाइन कैसे करना है। पॉलिसी मेकर उन्होंने इस वक़्त जो प्रोवाइड किया था कि आप अपना हाउस इन ऑर्डर कर लें। हाउस इन ऑर्डर करने के ऊपर जो हमें अपनी इंट्रोड्यूस करवाई चाहिए थी प्रोविजंस, वो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस था। हम उनके थ्रू उसकी कलेक्शन करते। अनफॉर्चुनेटली वही जो टैक्स पेयर ऑलरेडी इस वक़्त हैं, उनकी इनकम तो टैक्स हो ही रही थी। उनकी जो एक्सपेंस साइड थी, उसके थ्रू उनको फर्दर स्क्वीज़ किया जा रहा है। तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है और आईएमएफ कहें कि हम ये आईएमएफ का बजट है, आईएमएफ का नहीं है। दैट इज़ टू द एक्सटेंट कि उन्होंने क्वांटम आपको दिया है, लेकिन अपने हाउस को इन ऑर्डर करने के लिए आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, लेकिन उसको शायद हम फ़ोरगो कर रहे हैं और हम मिस कर रहे हैं। वैसे साहब आप बिफोर यू ऐड इसमें कोई इस तरह का कोई कंट्री है कि जो आईएमएफ प्रोग्राम में भी हो और साइमल्टेनियसली वो अपनी स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल रिफॉर्म्स भी कर सकता हो? मेरे ख्याल से ये जो आपका सवाल है कि आईएमएफ फ्रेंडली और पीपल फ्रेंडली, जिसे हम आम ज़बान में अवाम दोस्त बजट कहते हैं, अ, मुझे लगता है हम अपनी बहुत सारी जो बुरी चीज़ें हैं वो शायद उसके लिए हमने एस्केप गोट बना लिया है कि हम आईएमएफ के ऊपर डाल देते हैं। जिस तरह बहैसियत इंसान हम अपने तमाम तर बुरे अमाल का ज़िम्मेदार शैतान को करार देते हैं, उस तरह हमने एक बना लिया है कि शायद आईएमएफ की वजह से हम कोई अच्छा काम नहीं कर पा रहे। जो खालिद साहब ने कहा मुझे लगता है बिल्कुल ठीक बात है। आईएमएफ कोई आपको ये नहीं कहता कि सैलरी का रेट बढ़ा दो, कम कर दो। हाँ, वो आपके मेजर्स को क्वेश्चन ज़रूर करते हैं कि आपका ख़्याल है कि आप सुपर टैक्स लगाकर मिसाल के तौर पर इतना टैक्स कलेक्ट कर लेंगे, तो ये आपकी असम्पशन ठीक है कि नहीं है? हमें लगता है चैलेंज हो जाएगी। या सैलरी के अंदर आप इतना रिलीफ़ दे रहे हैं, तो ये आपको कोई फ़ायदा देगा, इतना रिलीफ़ देना, इस तरह की बातें होती हैं। मेरा नहीं ख़्याल कि वो इतना माइन्यूटली कुछ चीज़ों को मॉनिटर करते होंगे। शायद कुछ चीज़ों की हद तक हो, लेकिन नॉट नेसेसरीली ऑन एवरीथिंग। इतना वो माइन्यूटली नहीं जाते। लेकिन जो आपका बुनियादी सवाल था कि क्या ये आईएमएफ फ्रेंडली है या आवाम दोस्त है, इसके कुछ पहलू ऐसे ज़रूर लगते हैं जो उन्होंने पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए, जैसे सैलरी के कुछ रेट्स कम किए हैं या सरचार्ज का रेट 1% कम कर दिया, सुपर टैक्स में आधा % कम कर दिया। कुछ छोटे मोटी चीज़ें ऐसी करने की कोशिश की है कि परसेप्शनली लगे कि हमने आवाम के लिए कुछ किया है। लेकिन अगर पिछले साल के इंक्रीज़ रेट्स के तनाजुर में देखा जाए, तो हमारे रेट्स वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। वो ऑलरेडी इतने हाई रेट्स थे कि शायद उनको वो मज़ीद नहीं बढ़ा सकते थे। तो ये इस हद तक मैं कहूँगा कि आवाम दोस्त है कि उन्होंने मज़ीद बर्डन नहीं बढ़ाया हमारे ऊपर। अच्छा, अनवर साहब, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टू यू। सर, ये बेसिकली आप देखें कि काफ़ी टाइम से इस पे डिस्कशन हो रहा था कि जो कमिश्नर अपील्स का ऑफिस है दैट इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट ऑफिस। फिर उसके ऊपर काफ़ी अभी हैदर साहब भी डिस्कस कर रहे थे कि काफ़ी चेंजेस के बाद आपने पिक्यूनरी लिमिट्स डिफाइन की कि भाई ट्राइब्यूनल के अंदर जाएंगे, ये सारी चीज़ें होगी। तो फिर गवर्नमेंट की इनकंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ जो है वो ऑब्वियसली बिजनेसमैन, टैक्स पेयर्स सबको ही बॉदर करती है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या उस वक्त हमारा डिसीजन जो सही था दैट वाज करेक्ट, या फिर आज जब हम बात कर रहे हैं कि हमने वापस से उसको रिस्टोर कर दिया पुरानी पोजीशन पे, तो आज हम सही हैं? बेसिकली देखें, इस पे लास्ट ईयर हमने बड़ा मतलब कोशिश की है और थैंक यू हैदर पटेल साहब ने एक्नॉलेज किया इसको। मैं समझता हूँ कि ये बहुत दिनों से बात हो रही है कि सीआईटी अपील का फोरम जो है इंडिपेंडेंट नहीं है। बिकॉज आप देखेंगे एक आदमी एक हफ्ते में जोनल कमिश्नर होता है और दूसरे हफ्ते वो सीआईटी अपील लगा होता है। लेकिन नेवरदलेस वो जो लोगों की वो थी कि वहाँ पे डिस्पोजल जल्दी हो जाता था, ट्राइब्यूनल में मेंबर्स नहीं थे, इसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान थे कि उनके केसेस डिस्पोज ऑफ नहीं होते। हेयरिंग हो रही है, अगर आप इस वक्त कोई स्प्रेडशीट बनवाएं ट्राइब्यूनल की, तो वहाँ आपको सिर्फ स्टे की एप्लीकेशन एक्सटेंड होने जाते हैं, ऑर्डर्स आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इस वजह से लोग ये कह रहे थे कि हमारे केसेस जो हैं वो वहाँ पे पेंडिंग होते हैं और सीआईटी अपील में जो है वो रिजॉल्व हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये फेज़ है और इस फेज़ के बाद ये आगे जाएंगे इंडिपेंडेंट फोरम के लिए, इनको ये जाएंगे ट्राइब्यूनल में, लेकिन वहाँ सिंगल बेंच और डीबी का एक मैकेनिज्म जो इनके जहन में है वो लेके आएंगे। लेकिन अभी जो फॉर द टाइम बिंग एक फोरम अवेलेबल है लोगों के लिए जल्दी रिलीफ का, और एक ऑर्डर उनके पास आ जाता है। पेंडेंसी का जो कंपैरेटिव है उसमें भी सीआईटी के लेवल पे पेंडेंसी कम थी, ट्राइब्यूनल के लेवल पे पेंडेंसी ज़्यादा थी। तो इसीलिए हम ये कह रहे थे कि आप जो बात कह रहे हैं कि इतना मिलियंस और रुपीज़ का टैक्स फंस गया है ट्राइब्यूनल में, वो मतलब सीआईटी लेवल पे तो ऐसा नहीं है। सीआईटी पे डिस्पोजल ज़्यादा है, ट्राइब्यूनल पे तो आपको ट्राइब्यूनल को रिवैम्प करने की ज़रूरत है, डिजिटलाइज करने की ज़रूरत है और वहाँ पे अच्छे और नए मेंबर्स लाने की ज़रूरत है। उन्होंने कानून साजी कर ली है, कुछ मेंबर्स अपॉइंट हुए हैं, लेकिन वो प्रोसेस आपको पता है यहाँ कोई भी स्टार्ट होता है तो उसमें कोई ना कोई लीगल इच आ जाती है। तो मेरे ख्याल में वो 35 मेंबर्स का इनका टारगेट है, तो उसके बाद शायद सूरत हाल बेहतर होगी।
ठीक है, रजा साहब, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू कि देयर इज अ पर्सपेक्टिव दैट गवर्नमेंट ऑलवेज टारगेट द ग्रोइंग सेक्टर फॉर टैक्सेस। एक एग्जांपल हमने देखी कि पाकिस्तान के अंदर सभी कोशिश कर रहे थे लास्ट कपल ऑफ ईयर से कि आईटी को, ऑनलाइन मार्केट प्लेस को, ई कॉमर्स को, और पोस्ट कोविड तो ये ट्रेंड ज़्यादा इंक्रीज भी हो गया। इस करंट बजट के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस, गवर्नमेंट ने अपना बर्डन फिर शिफ्ट किया है ऑनलाइन मार्केट प्लेस को कि भाई वो इंश्योर करें कि जो वेंडर्स हैं वो रजिस्टर हैं या नहीं है, इनकम टैक्स में, सेल्स टैक्स में, कलेक्शन को इंश्योर करें, जो जो पेमेंट गेटवेज हैं। सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट वुड बी द रिजल्टेंट चैलेंजेस? और आप नहीं समझते कि हमारा जो करंट सिस्टम है वो ऑब्स्टिकल ज़्यादा क्रिएट करता है बिजनेसेस के लिए एज़ कम्पेयर टू कि वो फैसिलिटेट ज़्यादा करे? थैंक यू मुजम्मिल। इसमें देखें, जो ये ऑनलाइन मार्केट प्लेस के हवाले से या ई कॉमर्स के हवाले से जो टैक्सेशन मेजर्स आए हैं, कुछ इनडायरेक्ट टैक्स में आए, वो इनडायरेक्ट टैक्स वाले बयान करेंगे। और डायरेक्ट टैक्स में उन्होंने बुनियादी तौर पर एक विदहोल्डिंग टैक्स लगाया है, जिसके अंदर जो फ्लॉज हैं वो हैदर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। लेकिन मुझे याद पड़ता है जब फर्स्ट टाइम प्रिजम्पटिव टैक्स आया था कोई 1991-92 में, मेरे ख्याल है हम उसके बाद जिस ज़माने में टैक्स प्रैक्टिस शुरू की थी तो हमारे सामने इलाही कॉटन मिल्स का जजमेंट आया, तो उस वक्त लोग उसे अपोज करते थे, ये प्रिजम्पटिव टैक्स बहुत ज़्यादा है और ये ख़त्म होना चाहिए। बट वंस इट वाज कॉन्स्टिट्यूशनली कन्फर्म्ड तो लोग अपने बिजनेस मॉडल्स फिर उस तरह के टैक्सेशन के गिर्द ऐसे मॉडिफाई करते हैं कि वही चीज़ उनके फ़ायदे में चली गई। तो गोइंग फॉरवर्ड प्रिजम्पटिव जो है वो उन मॉडल्स के, ट्रेडिंग मॉडल, इम्पोर्टर मॉडल के लिए फ़ायदेमंद हो गया और हमारी पूरी इकॉनमी जो थी वो उन मॉडल्स पे शिफ्ट कर गई। तो ये जो इन्होंने डिजिटल इकॉनमी में मुख्तलिफ़ किस्म के मेजर्स लेकर आए हैं, मेरा ख़्याल है कि अभी इनको इतना, अब कुछ लोगों को लग रहा है कि वो हार्श है, कुछ लोगों को एक्चुअली इसमें लग रहा है कि फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए कि जैसे ऑनलाइन मार्केट प्लेस में कुछ गुड्स के रेट्स जो हैं वो 2% पे हो गए हैं और वो फाइनल टैक्स है, जो अदरवाइज़ शायद उनका रेट जो है वो 35-40% था कंपनी के केस में। तो वो ये भी सोच रहे हैं कि अगर हम इस मॉडल में चले जाएँ तो हमारा रेट कम हो सकता है। इट्स अ मिक्स काइंड ऑफ मेजर, बट आई थिंक जो जो पेमेंट गेटवेज़ हैं या जो आपकी फिनटेक कंपनीज़ हैं, उनको लग रहा है कि ये हमारा कंप्लायंस बर्डन इसमें बढ़ेगा और अचानक से आपने इतना ज़्यादा रेट जो है वो बढ़ाया है। और ज़्यादा उनको जो चीज़ खल रही है वो रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है कि जब आपने कहा है कि वेंडर्स जो हैं वो उनको रजिस्टर होना चाहिए, जो वैसे भी होना चाहिए अगर वो उस पे ई कॉमर्स पे नहीं कर रहे और इनकम कमा रहे हैं या उनकी सेल्स टैक्स की रिक्वायरमेंट है तो उनको होना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है चूँकि ये डिजिटल इकॉनमी बढ़ रही थी, इसको थोड़ा सा इनकरेज करते कि उससे आपको डाटा आता, एटलीस्ट डॉक्यूमेंटेशन तो हो रही थी ना। अब ये होगा कि वो ट्रेडर या वो जो सेलर है जिसको ये परसेंटेज ऑफ टैक्स नहीं वारा खाती होगी, वो वापस शिफ्ट हो जाएगा उसके ऊपर या नहीं जाएगा उसके अंदर ऑनलाइन में। दूसरा है कि ये एक अर्बन मैकेनिज्म है ना, जो हमारा ऑनलाइन मार्केट प्लेस का कॉन्सेप्ट है वो तो सारा बड़े शहरों में या बड़ी जो जगह हैं वहाँ पर इस्तेमाल होता है, ये कोई छोटी जगहों पर तो इस्तेमाल नहीं होता। तो ऑटोमेटिकली इस तरह के जो टैक्सेस होते हैं वो आपकी ट्रांजैक्शनल कॉस्ट बढ़ा देते हैं। तो मुझे लगता है इसमें बहरहाल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कुछ जगहों पे बढ़ेगी और गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है कुछ लोगों को जिनको इसमें फ़ायदा नज़र आए वो अपने मॉडल इसके इर्द गिर्द चेंज करेंगे, फिर अगले साल गवर्नमेंट इसको सोचेगी कि हम वापस ही कर लें। अच्छा, इसमें क्योंकि ऑब्वियसली वी हैव शॉर्ट टाइम, तो मैं एक फ़ॉलोअप क्वेश्चन साथ ही आपसे ये भी पूछ लेता हूँ कि आपने कहा कि ब्रॉडनिंग के हवाले से भी ज़ाहिर एक अच्छा मेजर तो है, लेकिन ये क्या सेक्टर्स में डिस्पैरिटी क्रिएट नहीं करेगा कि अगर मैं फ़िज़िकली अपना किसी मॉल के अंदर एज़ रिटेलर ऑपरेट करूँ तो वो वहाँ पे कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस ना हो, और यहाँ पे जो है वो ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे अगर करना चाहूँ तो आपको नहीं लगता कि डिस्करेज किया जा रहा है? नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो डिजिटल प्रेजेंस प्रोसीड एक्ट आया है, क्या ये रिजेंबल करता है उसी से जो डिजिटल सर्विस टैक्स था फ्रांस में 2019 के अंदर जो इंट्रोड्यूस हुआ था? तो और फिर साइमल्टेनियसली ट्रीटीज़ की प्रेजेंस के अंदर साइमल्टेनियसली अगर हम कहते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस ग्राउंड्स के ऊपर पाकिस्तान आइसोलेट नहीं हो जाएगा? 2 सवाल कर दिया आपने। जो पहला वाला सवाल है, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो एक बज़ाहिर डिस्पैरिटी है, वो हमारे पूरे टैक्स सिस्टम का एक लाज़मी जुज़्व बन गया अनफॉर्चुनेटली कि इतने ज़्यादा हमने डिफरेंट रिजीम्स रखी हुई हैं विद इन इनकम टैक्स कि हर बिज़नेस जो है वो एक मुख्तलिफ तरीके से टैक्स हो रहा है, जिस पे हम गाए बगाए आई थिंक आईकैप की तरफ से भी कितने अरसे से जा रहा है कि ये आप जो ट्रांजैक्शनल किस्म के टैक्सेस हैं, जो हमारा सेशन है हम कह रहे हैं डायरेक्ट टैक्स है, लेकिन अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो ये डायरेक्ट टैक्स है ही नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया सारा। इसलिए कि हर इनकम टैक्स जो है वो विदहोल्डिंग के थ्रू हो रहा है या ट्रांजैक्शन पे हो रहा है। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये इसमें डिस्पैरिटी आएगी। जो ऑलरेडी डिस्पैरिटी अभी भी मौजूद है कि जो लोग विदहोल्डिंग एजेंट्स के साथ डील करते हैं उनका रेट मुख्तलिफ है, जो लोग विदहोल्डिंग एजेंट्स के साथ नहीं डील करते उनका रेट मुख्तलिफ है।
तो ये डिस्पैरिटी तो आएगी। दूसरा जो आपने सवाल पूछा डिजिटल प्रेजेंस, अभी तो नाम भी ज़बान पे नहीं चढ़ रहा डिजिटल प्रेजेंस प्रोसीड्स टैक्स, ये आपको यकीनन इल्म होगा और बाकी जो हमारा बैठे हुए ऑडियंस सारे पढ़े लिखे लोग हैं, जो OECD का प्रोग्राम था बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, उसमें जो उनका एक्शन 1 था वो था सारा डिजिटल इकोनॉमी के इर्द गिर्द घूमता था कि डिजिटल इकोनॉमी में जो टैक्स बेस की इरोजन हो रही है उसमें क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है उन्होंने इन दी एंड ये कॉन्क्लूड किया था कि हम इसके ऊपर कोई यूनिफाइड या ग्लोबलाइज्ड एक्शन नहीं ले सकते और ये इकोनॉमी अभी फ्लरिश कर रही है, इतनी ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं कि हमें इसको रिंग फेंस नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कुछ उसमें सजेशंस दी थी कि जब तक कोई हम सोल्यूशन यूनिफाइड बेसिस पे नहीं इवॉल्व करते, ये मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट्स अपने ओन पर ले सकती हैं, जिसमें से एक ये था जो DPPT टाइप का है। और इससे मिलती जुलती लेवीज आपने बिल्कुल फ्रांस की एग्जांपल दी, आई थिंक इटली में भी हुआ है, स्पेन में भी हुआ है, इंडिया में इक्वलाइजेशन लेवी थी। बट मेरी मालूमात के मुताबिक जिस जिस मुल्क में इस तरह की कोई लेवी आई है, एक तो वो इनडायरेक्ट टैक्स की थी, वो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स था। इनकम टैक्स मेरा नहीं ख्याल के कहीं पर आया है, वो हर जगह पर इनडायरेक्ट टैक्स था और उसमें कुछ थ्रेशोल्ड्स हैं। बड़ी मल्टीनेशनल्स को उन्होंने टारगेट किया। हमारे यहाँ तो कह रहे हैं 5 ट्रांजेक्शन होंगी तो आपको मैं टैक्स करूँगा, ये कुछ थोड़ा सा अनरीजनेबल लग रहा है और मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कोई इम्प्लीमेंटेबिलिटी भी हो सकेगी। जो उन्होंने विद होल्डिंग की प्रोविजन डाली है कि अगर कोई फॉरेन वेंडर जो है वो फॉरेन किसी सोशल मीडिया को पेमेंट कर रहा होगा तो उसका टैक्स काट के पाकिस्तान को जमा करवाएगा, ये एनफोर्समेंट जुरिसडिक्शन के कानून के खिलाफ है। आप एक्स्ट्रा टेरिटोरियली इस तरह की लॉ तो बना सकते हैं लेकिन उसको एनफोर्स कैसे करेंगे? एनफोर्समेंट छोड़े, हमारे यहाँ तो रुपए के अलावा आप फॉरेन करेंसी में टैक्स नहीं जमा करवा सकते। अक्सर जगहों पे हमें प्रॉब्लम आती है, बाहर वाले लोग टैक्स जमा करवाना चाहते हैं, यहाँ कहते हैं जी लोकल बैंक अकाउंट होगा तो जमा होगा, वरना फॉरेन करेंसी में टैक्स नहीं जमा हो सकता। जो ट्रीटी वाली आपने आखिरी बात की वो आई थिंक हैदर साहब ने भी बहुत अच्छे तरीके से उसको एड्रेस किया है कि जो ट्रीटी की सुप्रीमेसी है वो थोड़ी सी ये चैलेंज आएगा। इट्स नॉट एन ईजी थिंग बिकॉज पहला चैलेंज जो हमारे आएगा वो ये आएगा कि DPPT की नेचर क्या है, वेदर इट इज़ एन इनकम टैक्स। अनवर साहब बैठे हैं, उनके सामने मैं क्या लब कुशाई करूँगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एंट्रीज़ की रोशनी में आपको टैक्स लगाना होता है ना, उसमें या इनकम टैक्स है या सेल्स टैक्स है या एक्साइज है, तो इस टैक्स की नेचर क्या है? अगर किसी ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज किया तो कोर्ट्स को ये देखना पड़ेगा कि ये किस एंट्री में फॉल करता है। अगर उन्होंने कहा इनकम टैक्स है तो ट्रीटी प्रिवेल करती है, अगर उन्होंने कहा ये सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है तो फेडरल गवर्नमेंट का राइट नहीं है, प्रोविंस में चला जाएगा। हाँ, कोई तीसरी चीज़ वो कर दें तो मैं कुछ नहीं कह सकता, कोर्ट कुछ भी कर सकता है। अच्छा, खालिद साहब, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टू यू कि लास्ट ईयर अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें तो गवर्नमेंट जब टारगेट्स के इश्यूज चल रहे थे तो उस वक्त ये एक आर्ग्यूमेंट दिया था कि हमें सैलरी क्लास के ऊपर टैक्स रेट्स चार्ज करना ज़रूरी है। अच्छा, सब्सिक्वेंटली हमने देखा कि उन्होंने अपने टारगेट्स के बहुत ज़्यादा बियॉन्ड जो है वो उससे रेवेन्यू भी जनरेट किया। अच्छा, करंट ईयर में हम देखें तो करंट ईयर में बहुत नॉमिनल सा जो है वो एक रिलीफ दिया गया सैलरीड क्लास को। और साइमल्टेनियसली प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी देखी फाइनेंस मिनिस्टर की, उसमें उन्होंने कहा कि जितना हम फिस्कल स्पेस अवेलेबल था उतना जो है वो हम आपको रिलीफ दे सकते थे। हाउ डू यू सी दिस अमेंडमेंट? और फिर सेकंड एक और क्वेश्चन इसके साथ कि जो सर्विस सेक्टर के साथ किया गया है इस बजट के अंदर कि आप एक तरफ कहते हैं स्पेसिफाइड सेक्टर्स है, फिर उनके मार्जिन्स जो है वो कम होते हैं इसीलिए आप 2% पहले टैक्स पे थे, फिर 3% की बात की, फिर 4%, फिर अब उसको 6% कर दिया IT के अलावा, और फिर लाइकवाइज आपने पहला क्वेश्चन किया कि ये सैलरीड क्लास जो है उसको लास्ट ईयर को बर्डनसम किया गया। वो बहुत ज़्यादा बर्डनसम हुए और आपने देखा ही होगा कि जितना उनके ऊपर बर्डन डाला गया है वो क्योंकि एक ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड सेक्टर से पर्टेन करते थे और उनके एम्प्लॉयर्स बाउंड थे कि उनके ऊपर वो विद होल्डिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ करें। तो जितना वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे कहीं ज़्यादा उसकी कलेक्शन ऑलरेडी हुई और इसको एक्नॉलेज भी किया है FBR ने। इस बार उसको वो रिवर्स करने की बात की जा रही है लेकिन रिवर्स नहीं हुआ, बहुत मिनिमल सी चेंजेस आई हैं। लेकिन वो चेंजेस जो स्पेसिफिकली आ रही हैं उनका ये ख्याल है कि जिनकी तरफ से शोर आना की कोशिश हो सकती थी वो सेक्ट एड्रेस हो रहा है और उनको कुछ रिलीफ दिया जा रहा है। उस रिलीफ की वजह से काफ़ी सारे लोग वो ये कंसिडर करेंगे कि उनको रिलीफ मिल गया है तो इसके ऊपर वो फर्दर कुछ कमेंट ना करें। उसके साथ उन्होंने दूसरा रिलीफ जो दिया है कि आपको सरचार्ज के ऊपर 1% की रिडक्शन दी गई है, तो इसकी वजह से इम्पैक्ट तो आएगा। लेकिन वो इम्पैक्ट इतना नहीं है कि अगर हम 24 के साथ जिस तरह की कंपैरिजन अभी हैदर साहब प्रेजेंट कर रहे थे उसके देखा जाए तो उस तरह का बेनिफिट नहीं है कि हम अल्टीमेटली उस पोजीशन पे आ जाते जो कि हमारा 24 के अंदर था या उससे पहले की पोजीशन थी। तो ये बर्डन अभी भी है
वो आगे भी रिटेन करेगा। जहाँ तक फिजिकल स्पेस की बात है, तो फिजिकल स्पेस तो इस साल भी नहीं थी। अभी भी देखें तो आपका शॉर्टफॉल है कलेक्शन के अंदर, और शॉर्टफॉल कलेक्शन होने की वजह से आप देख लें कि लॉज के अंदर अमेंडमेंट ये की गई कि इवन ये कंसिडर कर लिया गया कि जो बिजनेसमैन या आपका जो टैक्स पेयर है उसका बैंक अकाउंट उनका अकाउंट है। उसके अंदर जितनी भी चेंजेस लाई गई थी उसको इसी तरह इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि किस तरह उसके बैंक से कोर्सिवली या अदर प्रोविजंस के साथ उसकी रिकवरी जो है ना उसको एक्सपेडाइट किया जा सकता है। यही वजह थी कि आपने देखा कि इस बार कोई मिनिमम बजट भी नहीं आया, तो आप पॉलिटिकली भी अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये अब मिनी बजट जो है वो नहीं लाया गया और शायद आगे भी नहीं आए, क्योंकि इस तरह की प्रोविजंस अगर होंगी तो उसकी बेसिस पे ये प्रॉब्लम होगी। अच्छा, एक आपने सर्विस सेक्टर पे बात की। जी हाँ जी जी, जी सर्विस सेक्टर जी, आप कुछ क्वेश्चन नहीं नहीं प्लीज ऐड करें। अच्छा, सर्विस सेक्टर, ये आप सर्विस सेक्टर पहले से भी इस वक्त मिनिमम टैक्सेशन की रिजीम जो है ना उसने बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिस्टॉर्ट किया हुआ है। आप अगर इजी कलेक्शन की तरफ जाएंगे, ये नथिंग एल्स बट द इजी कलेक्शन माई ईयर। आप के पास याद होगा कि जितनी भी मिनिमम टैक्सेशन रिजीम जब इंट्रोड्यूस करवाई गई थी उस वक्त अक्सर एफटीआर की इनकम्स को इस वक्त एनटीआर के अंदर लेके आया गया था, और डिपार्टमेंट की तरफ मतलब एफटीआर की तरफ से ये पोजीशन थी कि हमारे पास ओवरऑल कलेक्शन जो एफटीआर में हो रही थी वो रिड्यूस हो जाएगी। तो उसको फॉर द टाइम बिंग ये अरेंज किया गया था कि आप उसको रिफंड ना करें, वो अमाउंट उस टू दैट एक्सटेंड आपके पास रहेगी, तो आपकी कलेक्शन इफेक्ट नहीं होगी। लेकिन मिनिमम टैक्सेशन स्टॉप गैप अरेंजमेंट था, आपको नेट इनकम बेसिस पर टैक्सेशन करनी थी, इस सारे के क्रेडिट्स को आपको अलाउ करना था, और उसके बाद ये अमाउंट अगर रिफंडेबल बनती थी तो आपको रिफंड नहीं करना था। अब आप इस वक्त मिनिमम टैक्सेशन देखें तो इतनी ज्यादा मिनिमम टैक्सेशन है, 113 तो बहुत पीछे रह गया है, उसके बाद हर सेक्शन जो है वो मिनिमम टैक्सेशन में जा चुका है, और डिपार्टमेंट जिस तरह उसको इंटरप्रेट कर रहा है, हर स्ट्रीम ऑफ इनकम विल बी कंसिडर्ड एज इज द डिफरेंट। आपके बिजनेस इनकम के अंदर इंपोर्ट, आपकी एक्सपोर्ट, आपकी ये नॉर्मल 153, जितनी भी आपकी ये डिडक्शंस हैं, सब की सब स्ट्रीम्स को अगर आप अलग अलग करना शुरू करें तो नॉर्मल बिजनेस इनकम कितनी स्ट्रीम्स में कन्वर्ट हो जाती है, और उसके बाद आप उसको कंपेयर करेंगे 113 के साथ, और फिर करेंगे सर्विस सेक्टर के अंदर एक्सॉर्बिटेंट इंक्रीज की वजह से बहुत बड़ी चेंज आएगी। प्रॉफिटेबिलिटी इतनी है नहीं जितना, अनफॉर्चुनेटली डिपार्टमेंट इसको कंसिडर ये करता है कि सर्विस सेक्टर शायद उसने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं की होती है, उसकी इन्वेस्टमेंट मिनिमम है, और शायद उसकी कॉस्ट इतनी नहीं होती है, शायद उसको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, लेकिन वो शायद सर्विस सेक्टर में उनको खुद आना चाहिए, आके देखें कि सर्विस सेक्टर में कितनी कॉस्ट हैं और वो किस तरह उसको मैनेज कर रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इतनी नहीं है और इतनी एग्जॉर्बिटेंट इंक्रीज को एब्जॉर्ब करना फॉर सर्विस सेक्टर पॉसिबल नहीं होगा। थैंक यू सर। अनवर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि what legal issues disputes you find in this bill that would potentially be challenged in the courts? और फिर साइमल्टेनियसली अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन की बात की गई है, आपका इसमें क्या थॉट्स हैं कि फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनली इसको किस तरह से हम देख सकते हैं? बेसिकली मेरे ख्याल में 2-3 सालों से कुछ सेंस प्रिवेल किया है, तो गवर्नमेंट ऐसी चीज़ें फाइनेंस बिल के ज़रिए नहीं लाती जिसको कॉन्स्टिट्यूशनली आप चैलेंज करें। एक सुपर टैक्स सागा जो चल रहा है, 4B 4C CVT आया, 7E आया, अब उसका फेट जो है मेरे ख्याल में जुलाई तक वो सारी चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी। बट अपेरेंटली मुझे इस फाइनेंस बिल में कोई ऐसी चीज़ नहीं जाए जिसे कॉन्स्टिट्यूशनली आप चैलेंज करें। बात जो रज़ा ने की वो लेवी के हवाले से, तो वो जो डिजिटलाइजेशन की वो लेवी है, और वो पहले अगर ओरिजिनेट नेशनल असेंबली से हुई है तो सेनेट उस पर कमेंट करेगा, और वो अगर जब तक अप्रूव नहीं होंगी जब तक वो पास नहीं हो सकता। टैक्स के मैटर ये होते हैं कि वो यूनिटरली आप जो है उसको पास कर लेते हैं, तो ये एक चीज़ है। बट जो वेस्टेड राइट की बात है, देखें बात यह है कि पाकिस्तान में FATF जब आया तो उन्होंने AML के लॉज लेके आया, बेनामी के लॉज लेके आया, उसके बाद जो है आपका राइट नहीं रहा कि आप डिस्क्लोजर ना करें, तो आप डिस्क्लोजर करना, आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है वो आपको नहीं प्रोटेक्ट करता कि आप अपना इनकम को आप सप्रेस करें, और ये आपके राइट्स से किसी तरह भी इन्फ्रेंच नहीं होता। तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जो बुनियादी प्रॉब्लम पाकिस्तान में है वो इस लॉ को आप ले लें, या आप गदूना मज़ई ले लें, या आप नूरियाबाद ले लें, होता यह है कि जब तक एग्जिम्पशन होती है, जब तक चीज़ें बूम कर रही होती हैं, जैसे एग्जिम्पशन ख़त्म होती है वैसे एकदम ऐसा लगता है कि वहाँ पे बिल्कुल वबाल आ गया। तो कोई आदमी भी, कोई इनकम भी स्कॉट फ्री नहीं जानी चाहिए। आप उनको डॉक्यूमेंट करें, रिड्यूस रेट पे रखें, और उसके बाद ग्रेजुअली जैसे बिजनेस फ्लरिश करता जाए उनको आप बढ़ाते जाएं।
होता ये है कि हम पहले शुरू में उनको बिल्कुल कहते हैं आप एग्जेम्प्ट हैं, और सडनली हम ला के उनको 5% 10% है, तो उनकी उनकी जो फिजिबिलिटी होती है, प्रोजेक्शंस होती हैं, वो सारी फिजल आउट हो जाती हैं। तो इस तरह के इकदाम जो है ना एब्रप्टली नहीं करना चाहिए। अब ये जो एक्ट आया है, इस पर एक डिटेल डिस्कशन होनी चाहिए थी, इस पर स्टेक होल्डर्स को बैठा के डिटेल, और उनसे जैसे हैदर साहब ने कहा कि ये प्रॉब्लम से कैसे चार्ज होगा, किस पे चार्ज होगा, तो ये चीज़ें बैंक के साथ बैठ के एक पूरा फ्रेमवर्क बनाया जाता, उसके बाद ये कानून लेके आया था। अब आप एब्रप्टली लेके आ गए, अब इस पे ह्यूमन क्राई होगा और फाइनली ये जो है ना जो है शेल्फ हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में इसको इस तरह नहीं करना चाहिए। ये मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कोई भी चीज़ लगाएं और कोई भी इनकम स्कॉट फ्री नहीं जानी चाहिए, हर इनकम पे टैक्स होना चाहिए, एक्सचेकर को वापस जानी चाहिए। ओके, सो एज़ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, मेरा फाइनल जो है वो मैं आपसे कमेंट लेना चाहूँगा 30 सेकंड्स के अंदर, अगर हम ईच जो है वो उसको रिस्पॉन्स दे सकें कि डू यू थिंक दीज डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल विल हेल्प इन दी टर्न अराउंड ऑफ आवर इकोनॉमी? सर रज़ा साहब। कुछ मिक्स सा है, कुछ चीज़ों में हेल्प होगी, लेकिन ये कि ज़्यादातर कोई ऐसी स्ट्रक्चरल चेंज मुझे नज़र नहीं आ रही। ज़्यादा जो फोकस है वो इसी पर है कि जिससे मिले, जहाँ से मिले, जिस कदर कलेक्शन फोकस। खालिद साहब। मेरे ख्याल में ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा फॉर द रीज़न कि इस वक्त जो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस को हम हमेशा से कहते रहे हैं, और हमारा ये फोरम आई कैप का हमेशा से उसको फैसिलिटेट करने के लिए जितनी भी हम हेल्प कर सकते थे वो हमने उनको वॉलंटियर किया था। टैक्स बेस जब तक नहीं होगी उस वक्त तक नहीं होगा। यहाँ पे इन्होंने इस वक्त टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए जो इंट्रोड्यूस करवाई हैं प्रोविजंस, अनफॉर्चुनेटली वो अगेन इनडायरेक्ट है। जो इनकम अर्नर है उसके पीछे जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। इजी अरेंजमेंट आपके पास सिर्फ ये था कि जो पेयर है आप उसको ना सिर्फ ये कि उसका आप एक्सपेंस डिसअलाउ करना शुरू कर दिया, उसकी अगर शॉर्ट को गलती से डिडक्शन हुई है तो उसको भी उससे रिकवरी की, उसके अगेंस्ट पीनल प्रोविजंस हैं और वो भी उसी के ऊपर इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। हालांकि ये सारा डाटा जो वो प्रोवाइड करने के बाद अपनी रिपोर्टिंग कर चुका है, अब आप उस टैक्स पेयर के पीछे जाइए जो इनकम अर्न कर रहा है, उसका डाटा अवेलेबल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर जाने की बात नहीं हुई है। जो प्रोविजन इसके इंट्रोड्यूस हुई हैं वो अगेन उन टैक्स पेयर के अगेंस्ट है जो कि पेयर है। तो ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा, इसको उस तरह नहीं लिया जा रहा जिस तरह के होना थैंक यू। चाहिए। अनवर साहब। बेसिकली ये देखें, आपने टैक्स पेयर को अगर पेनलाइज करना है तो आपने एफबीआई को अकाउंटेबल भी करना होगा, ये ज़रूरी है। आपने 175C में अभी इस वक्त दे दिया कि एक ऑफिसर जो है जाके प्रीमिसेस पे बैठ जाएगा। प्रीमिसेस पे बैठेगा तो उसने ग्राउंड वर्क किया है, होमवर्क किया है, वो बिजनेस को खराब करने जा रहा है, पूरे बिजनेस को डिस्ट्रॉय करने जा रहा है, रेपुटेशन को खराब करने जा रहा है, तो उस अगर वहाँ पे कुछ भी नहीं निकला तो हु इज़ गोइंग टू रिस्पॉन्सिबल। फिर आपने कहा कि जी हम बोर्ड के पास पावर है कि वो कंडोन कर सकती है 2 साल तक लिमिटेशन। आप कैसे आपका ऑफिसर 6 साल उस पर बैठा रहे, उसके बाद आप कहें 2 साल एक्सटेंड कर दो, आप उसको फ्री फील्ड दे दें। अभी 122 में 9 में 180 दिन का टाइम था, अब आपका ऑफिसर प्रोसीडिंग कंक्लूड नहीं कर सकता, आपने कहा उसको खत्म कर दो। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ टैक्स पेयर को पेनलाइज करते रहें, आपको अकाउंटेबल करना पड़ेगा एफबीआर को कि आपकी जो डोमेन है आप उससे बाहर ना निकलें। Thank you. Thank you. On behalf of ICAP, I would once again like to thank our esteemed panelists for your insightful and grounded discussion. Thank you. अच्छा, इसमें मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि काफ़ी सारे मेंबर्स के क्वेश्चंस भी होंगे, अगर किसी को क्वेश्चंस हो तो ये पैनल अवेलेबल होगा तो आपके थ्रू उसको Sure. इंट्रोड्यूस हो Subsequently, सकता है। एनॉमली कमेटी ऑलरेडी बन गई हुई है, अगर किसी को उसको एनॉमलीज नज़र आती हैं तो वो आपके थ्रू या एनॉमली कमेटी को डायरेक्टली एड्रेस कर सकता है ताकि इसको टेकअप किया जा सके। Thank you. Thank you, sir. थैंक यू। Thank you. I would request all of you to please be on stage for mementos. Please, sir. Now I would like to call Mr. Zafar Subhani, ex-president ICAP, Mr. Khushid Kotwal, our council member, Mr. Sama Kapadia, member SRC, and Ms. Muniza Bhatt to present a token of appreciation to the moderators and panelists. And moderators, and I would like to request Mr. Zafar Subhani to give the memento Mr. Mohammad Raza. I would request Ms. Khushid Kotwal to give the memento to Mr. Khalid Mahmood. You're all, please have a huge round of applause. Now I request Mr. Sama Kapadia to give the memento to Mr. Anwar Kashif Mumtaz.
I would request Ms. Muniza Bhatt to give the memento to Mr. Muzammil Himani. A huge round of applause for all speakers. And thank you. Thank you, all of you.